میرے آج کے پیغام کا ٹاپک ہے نئی زندگی میں چلنا، واکنگ ان دا نیونیس آف لائف۔ اور ہم پڑھیں گے رومیو کے نام اور اس رسول کا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی 30ویں آیت، اور بعد میں ہم پڑھیں گے 4 آیت۔ اور یہ پڑھتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ آمین آمین۔ ان 2 آیات کو کچھ حصوں میں نے تقسیم کیا ہے۔ تو پہلا حصہ ہے، جنہوں نے بپتسمہ لیا وہ مسیح میں شامل ہو گئے۔ مسیح میں شامل ہونے کے بپتسمے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مسیح کی موت میں شامل ہونا۔ خداوند یسوع مسیح ہوا، کتنوں کا ایمان ہے کہ ہوا، پھر دفن ہوا، پھر جی اٹھا۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو مسیح کی موت میں شامل ہوتے ہیں، یعنی جیسے مسیح مر گیا ہم مر جاتے ہیں۔ اور پھر 4 آیت کا پہلا حصہ، موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلے سے ہم دفن ہوئے۔ تو بپتسمے کے وسیلے سے آپ پہلی بار موت میں شامل ہوتے ہیں، مسیح کی موت میں۔ پہلی بات میں نے کیا بتائی تھی؟ بپتسمے کے وسیلہ سے ہم مسیح میں شامل ہوتے ہیں۔ دوسری بات کیا بتائی؟ مسیح کے دفن ہونے میں شامل ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات اب بتا رہا ہوں سامنے آیات کی روشنی میں، مسیح یسوع کا مقرر کردہ بپتسمہ جب ہم لیتے ہیں تو مسیح کے ساتھ دفن ہوتے ہیں۔ تو مرتے ہیں پہلے، پھر دفن ہوتے ہیں۔ اور چوتھی بات انہی 2 آیات کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ جب دفن ہوتے ہیں تو مسیح بھی دفن ہوا تھا، اور مسیح دفن ہونے کے بعد جی اٹھا تھا۔ ہم بھی بپتسمہ لیتے ہیں تو دفن ہوتے ہیں، جیسے مسیح جی اٹھا تو ہم بھی جی اٹھتے ہیں۔ اتنے مطلب ہے بپتسمے کے، ٹھیک ہے؟ تو بپتسمے کے وسیلہ سے ہم نئی زندگی میں قدم رکھتے ہیں۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک پروسیس ہے اس کے پیدا ہونے کا، تو جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اس دن اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ پھر وہ باہر کی دنیا کو دیکھتا ہے، سانس لیتا ہے، رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، ماں کو دیکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ایک نئی لائف اس کی شروع ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب ہم توبہ کرتے، نجات پاتے، پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد نئی زندگی میں چلنا شروع ہوتے ہیں، زندگی نئی شروع ہو جاتی ہے۔ بولے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ تو نئی زندگی میں چلنا یا نئی زندگی میں چلنے کی اہمیت کیا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں۔ تو نئی زندگی میں چلنے کی اہمیت یہ روحانی زندگی کی تبدیلی ہے۔ بپتسمے سے ہم روحانی طور سے تبدیل ہوتے ہیں، یہ روحانی تبدیلی ہے، جسمانی نہیں۔ جسم اتنا ہی رہتا ہے ہمارا، جسم میں تبدیلیاں نہیں آتی، روحانی طور سے ہمیں تبدیلی آتی ہے، اور نئی پیدائش پانے کے بعد ہم نئے پن، نیونیس کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب پرانی زندگی ترک کر دیتے ہیں اور نئی زندگی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں بپتسمے کے بعد۔ پھر ایک اور بات، ہمارے کردار میں تبدیلی آتی ہے، کردار چینج ہو جاتا ہے۔ ہم مسیح کی مانند بننے کے لیے جدوجہد شروع کر دیتے ہیں، یعنی مسیح میں محبت تھی، ہم میں محبت آ جاتی ہے، صبر آ جاتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے، معافی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، عادتیں چینج ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ کی اگر عادات ہے نجات سے پہلے گالی دینے کی،
تو گالی دینے کی بجائے آپ کے اندر تبدیلی آ گئی، کردار بدل گیا، گالی دینے والے کو آپ گالی نہیں دیتے، آپ اسے خدا آپ کو برکت دے کہتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، پہلے جھوٹ بولتے تھے اب جھوٹ نہیں بولتے، پہلے اب گالی دیتے تھے گالی نہیں دیتے، پہلے آپ جو کچھ پرانی زندگی میں کرتے ہیں ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں، نئی زندگی کا آغاز کر دیتے ہیں، پہلے کسی کو معاف نہیں کرتے تھے اب آپ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے خطبہ روانی میں یہی سکھایا ہے۔ تیسری بات، ہماری زندگی کا ایک نیا مقصد شروع ہو جاتا ہے، بپتسمے کے بعد نئی زندگی میں چلنا شروع ہوتے ہیں، ایک نیا مقصد۔ پہلے ہمارا مقصد ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا ہم کس لیے زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن جب بپتسمہ لیتے ہیں ایک نیا مقصد ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں آسمان پہ جانا ہے، بولے ہالےلویا۔ پھر ہم دوسروں کی خدمت شروع کر دیتے ہیں۔ ہلو، آپ سن رہے ہیں؟ بپتسمہ لینے کو چھوٹی سی بات نہ سمجھیں، پھر آپ لوگوں کی خدمت شروع کر دیتے ہیں، پھر دوسروں کے لیے مثالی زندگی ہماری بن جاتی ہے۔ لوگ ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ کی ہو گیا، پہلا تے گالا کرتا سی، اے شخص نوں کی ہویا، اے بہن نوں کی ہویا، پہلا تے تیری زندگی بری سی، ہن یہ تبدیلی کتوں آ گئی ہے؟ لوگ حیران ہو جاتے ہیں نئی زندگی کو دیکھ کے، بولے ہالےلویا، ایک نئی مثالی زندگی، اور لوگ پھر اس کی مانند بننے کی کوشش کرتے ہیں، کاش کہ میں بھی ایسا بن جاؤں، لوگ یہ سوچتے ہیں۔ تو یہ ہے نئی زندگی میں چلنا۔ پھر ایک اور بات، جب کوئی خداوند کے گھر میں جنم لیتا ہے، نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، اس کو نیا خاندان مل جاتا ہے، نئی بہنا، نویاں بہنا، نوے برا، پہلا تو پیو نواں بن جاتا ہے، پہلے تو باپ نیا بنتا ہے ہمارا۔ کیسے؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو یوحنا پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، مسیح نے خدا کی فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی خدا کی فرزندیت مل جاتی ہے، باپ بھی ہمارا بدل جاتا ہے۔ جسمانی باپ ایک ہے، لیکن شیطان بھی باپ ہے گنہگاروں کا، وہ ہمارا باپ نہیں رہتا، ہمارا باپ خدا بن جاتا ہے، بولے ہالےلویا، بولے ہالےلویا، یعنی خدا ہمارا باپ بن جاتا ہے۔ نیا خاندان، نئی بہنیں، نئے بھائی، آپ جس جماعت میں ہوتے ہیں وہ آپ کی بہن ہے، وہ آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے بھائی ہیں۔ ایک ہمارا پڑھیں گے کہ نئی پیدائش پانے کے بعد، بپتسمہ لینے کے بعد ہمارا کریکٹر چینج ہوتا ہے، ہماری زندگی چینج ہوتی ہے، اور ہم نئے بن جاتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 17 آیت، دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 17 آیت، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے، میں رکتا ہوں یہاں پر، آپ کو یاد ہے کہ میں نے شروع میں کیا پڑھا تھا؟ ہم جب بپتسمہ لیتے ہیں تو مسیح میں آ جاتے ہیں، کن کو یاد ہے؟ میرے پیچھے بولے ذرا، جب میرے پیچھے بولے، جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو مسیح میں آ جاتے ہیں۔ اب آیت پڑھیں، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو رہی ہو گئی۔ پریز دی لارڈ، ہالےلویا۔ پرانی چیزیں کیا تھی؟ آپ پہلے شراب پیتے تھے، آپ نہیں پیتے، پہلے جھوٹ بولتے تھے، آپ نہیں بولتے، پہلے بد دعا دیتے تھے، اب آپ دعا دیتے ہیں، پہلے کوئی آپ کو تنگ کرتا تھا، پہلے آپ کو کوئی ستاتا تھا، اب بدلہ لیتے ہیں، اب بدلہ نہیں دیتے، اب آپ کی زندگی میں معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، بولے ہالےلویا، پھر بولے ہالےلویا۔ پھر کہتے ہیں جی کہ اسی بپتسمہ کیوں لئیے؟ وہ بھائی دسیا ہے کہ بپتسمہ کی ہے، اسی مزید شامل ہونے ہیں، اسی مسیح دے موت شامل ہونے ہیں، مسیح دے دفن ہونے شامل ہونے ہیں، مسیح دے جیوت ہونے شامل ہونے ہیں، اور نئی زندگی میں چلنا شروع کرتے ہیں، اور یہ ساری باتیں جو ہے، اور پھر ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں۔ متی، مرکز، لوکا اور یوحنا 4 اناجیل میں یسوع مسیح کے پیدا ہونے، تعلیم دینے، مرنے، جیوتنے، آسمان پہ جانے کی تعلیم ہے۔ لیکن متی، مرکز، لوکا، یوحنا کے بعد اگلی کتاب کون سی ہے؟ بولیے سب بولے کیا ہے؟ رسولوں کے اعمال۔ اگلی کتاب کون سی ہے؟ رسولوں کے اعمال۔ تو اعمال کی کتاب میں ہسٹری ہے کہ جب یسوع مسیح آسمان پہ چلا گیا تو رسولوں نے کیا کیا، شاگردوں نے کیا کیا، ان کی تعلیم کیا ہے۔ تو ابھی میں اعمال کی کتاب میں سے چند ایسے لوگوں کا ذکر کروں گا جنہوں نے توبہ کی، جو ایمان لائے، اور جنہوں نے بپتسمہ لیا اور نئی زندگی میں چلنا شروع کیا۔ کتنے ہیں جو سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں۔ پہلا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، نمبر 1،
नंबर 1 है इब्तदाई कलीसिया, यरूशलेम में जो पहली कलीसिया कायम हुई। जब यरूशलेम में पहली कलीसिया कायम हुई माल की किताब के 2 बाब में, तो हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी को ही बदल लिया, उनमें तब्दीलियां आ गई। आइए देखते हैं कौन सी तब्दीलियां हैं। माल की किताब 2 बाब उसकी 41 और 42 की आए, जरा आंखें खुली रखें और स्क्रीन पे भी देखें और मेरी तरफ भी देखें। इमाम की किताब 2 बाब 41 और 42 में आए, देखिए, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और ये, अब गौर से सुनना है इसको, और ये रसूलों से तालीम पाने और रिफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल हुए। तब्दीली आ गई। और ये जो रसूलों की किताब में पहला वाकया मैंने बयान किया है, ये पेंटिकोस्ट के दिन का वाकया है। पतरस ने कलाम सुनाया, लोगों ने मसीह को कबूल किया और आखिर में देखिए क्या 4 बातें। नंबर 1, वो रसूलों से तालीम पाते थे, तो नंबर 1 तालीम पाने में, और आगे रिफाकत रखना, कलीसिया में आपस में मेल जोल। पहले साड़ी रिश्तेदारियां, पहले साड़ी दोस्तियां गलत हो गया, सर नई फेलोशिप, नए रिश्ते, ईमानदारों के साथ रिफाकत रखने और रोटी तोड़ने, इसका मतलब शहरबानी लेने में मशगूल रहते थे और दुआ करने में। और जो नई कलीसिया थी, इब्तदाई कलीसिया, ये जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, ये हर रोज शहरबानी लेते थे, हर रोज पाक इशा लेते थे। हम ले सकते हैं, हर रोज भी ले सकते हैं, हर इतवार भी ले सकते हैं, जब मर्जी ले सकते हैं, लेकिन हम महीने में 1 बार लेते हैं, तो जब चाहे ले सकते हैं। तो ये पहली कलीसिया हर रोज इशाए पानी लेती थी, क्योंकि इसमें यीशु मसीह के मरने, दफन होने और जीतने की याद मनाई जाती है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और बपतिस्मा यही तो है, यीशु का मरना, जीतना और आसमान में जाना, यही तो बयान करता है। और पाक इशा भी यही बयान करती है। और आखिरी बात, दुआ करने में मशहूर। पहली कलीसिया में ये बातें आ गई। दूसरा वाकया, एक शख्स जिसका नाम साउल था, वो कलीसिया को सताने वाला था, बड़ा मगरूर था, बड़ा घमंडी था, बड़ा गुस्से वाला था, और उसके अंदर क्या कहना चाहिए, नफरत भरी हुई थी ईमानदारों के खिलाफ। और जहां जहां उसे पता चलता था कि कोई शख्स मसीह को कबूल कर रहा है, वो उसे गिरफ्तार करता था, वो उसे मरवा देता था, कत्ल करवा देता था। और उसके हाथ बड़े लंबे थे, हुकूमत के साथ और अदालत वालों के साथ और सदारत कायनों के साथ वो गिरफ्तार करा के उनके मुकदमे चलाता था, मरवा भी देता था। लेकिन एक दिन यीशु से उसकी मुलाकात हुई। ये इमाम की किताब का 8वां बाब है। यीशु से मुलाकात हुई, उसकी जिंदगी बदल गई। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। एक हनानिया नाम शख्स उसके पास आया, उसके सामने इसने खुदा को कबूल किया और फिर उसने उसको बपतिस्मा दिया, और बपतिस्मे के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। पहले नफरत, अब मोहब्बत। हालेलुया। पहले वो लोगों को गालियां देता था, अब लोग उसे गालियां देते हैं, वो दुआ देता है। ये तब्दीली है, ये जिंदगी में तब्दीली। आज के मेरे पैगाम का अनुमान भी यही है, नई जिंदगी में चलना, वॉकिंग इन न्यू लाइफ। तो मैं ये वाकया जो है इमाम की किताब के 9वें बाब में से आपको सुना रहा हूं। पहले कलीसिया को सताने वाला, गिरफ्तार करने वाला, बपतिस्मे के बाद क्या हुआ, तन्हा खुदावंद के साथ जिंदगी बसर करने वाला, दुआ में वक्त सर्व करने वाला। और फिर पढ़िए जरा इमाम की किताब 9वां बाब 20वीं आयत, यहां लिखा है, और फौरन इबादत खानों में यीशु की मनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। ये आई तब्दीली, इसको कहते हैं निजात पाने के बाद आपकी जिंदगी में ये तब्दीली आए कि आप फौरन लोगों को अपनी गवाही सुनाना शुरू करें। बताएं कि आप गुनहगार थे, बताएं कि यीशु ने आपके गुनाह माफ किए हैं, बताएं कि आपको नई जिंदगी मिली है। एकदम उसने खुदा की कलाम की मनादी करना शुरू कर दी। ये तब्दीली है जो आनी चाहिए। इसके लिए आपको सेमिनरी में जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सेमिनरी में ना जाए, जरूरत है, लेकिन गवाही देने के लिए, मसीह के पास लोगों को लाने के लिए किसी सेमिनरी की जरूरत नहीं है। सिर्फ निजात की जरूरत है, पानी के बपतिस्मे की जरूरत है, और उसकी तरह मनानी शुरू कर दी। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया।
सब बोले जरा ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। भाई ये तो सबसे पीछे बैठे जरा जोर से गए हालेलुया। ठीक है, थैंक यू। तो दो वाक्य मैंने बयान किए, अभी दूसरा वाक्य मैं बयान कर रहा हूं और उसके बारे में। जब तब्दील हुआ 3 मिशनरी सफर उसने किए, कलीसियाएं कायम की, और बाइबल में रोमियो से लेकर इब्रानियों तक जो खत है 14 खत उसने लिखे जो हमारी बाइबल का हिस्सा है। और फिर मसीह के लिए दुख सहे, उसको बैंड लगे मसीह के लिए, कोड़े लगे, संसार किया गया, गिरफ्तार कई बार हुआ, कई दफा अदालतों में घसीटा गया। और बाज लोग ये कहते हैं और ये सच भी है, मसीह से ज्यादा दुख इसने उठाए। लेकिन वो फर्क है, मसीह ने हमारे लिए दुख सहे। मेरे देखिए, देख रहे हैं मसीह ने किसके लिए दुख सहे? पौलुस ने दुख सहे मसीह के लिए। कितना फर्क है? मसीह ने किसके लिए दुख सहे और पौलुस किसके लिए दुख सह रहा था? मसीह के लिए। तो जब तब्दीली आती है तो मसीह के लिए दुख सहने के लिए भी तैयार हो जाए। हालेलुया। लोग गालियां दे, आप दुआ फिर रोम में हो गया और वहां वो शहीद भी हो गया यीशु के लिए। बोले हालेलुया। और वो खुद अपने बारे में क्या कहता है? फिलिपियों पहला बाब 21 आयत, और मैं चाहता हूं ये सब इकट्ठे ही आयत बोले। तब्दीली वो कहता है क्योंकि जिंदा रह, इकट्ठे बोले, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा। वो कहता है मैं मसीह के लिए जिंदगी पसंद कर रहा हूं, मर भी जाऊं तो तब्दीली की बात है। बोले हालेलुया। मसीह के लिए दुख सहने के लिए तैयार हो गया। बोले हालेलुया। और फिर कुछ और भी वो कहता है, अब वो बदल गया है। पहला ग्रंथियों 4 बाब 12-13 आयत या लिखा है, और अपने हाथों से काम करके मुशक्कत उठाते हैं। आगे क्या लिखा है? लोग बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं। ये है तब्दीली। लोग बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं। वो सताते हैं, हम सहते हैं। और आगे क्या है? वो बदनाम करते हैं, हम मिन्नत समाजत करते हैं। नहीं कि किसी ने बदनाम करता देखे दागों ने बदनाम करता ऐसे गुरु बदनाम करता, मैं लिखता है बदनाम कर रहा, मेरे भरा को बदनाम, मेरे पूरे खानदान को बदनाम करता रहा। ऐसे ये लोगों के अंदर बातें पाई जाती हैं। तो ये बड़ी खतरनाक और बुरी बात है। जब हम मसीह में आते हैं, लोग बदनाम करते तो करते जाएं, हम बदनाम नहीं करेंगे, हम सहेंगे। बोले हालेलुया। और बदनाम करने वालों के लिए बरकत चाहेंगे। ये पौलुस की जिंदगी है। तीसरा वाक्य, आज सिर्फ 4 वाक्य बयान करूंगा। तीसरा वाक्य, हबशी फौजा, एक शख्स जो इथियोपिया में मलका का वजीर था, यरूशलेम से अपने मुल्क वापस जा रहा था, बाइबल पढ़ रहा था, ईसाया की किताब। फिलिप्पस उसके पास चला गया। फिलिप्पस ने उसको निजात की खुशखबरी दी। उसने तौबा की, ईमान लाया, निजात पाई। और रास्ते में चलते चलते पानी आया। इस पानी की जगह पे पहुंचे, उन्होंने बपतिस्मा लिया। हबशी फौजा ने बपतिस्मा लिया और फिलिप्पस ने बपतिस्मा दिया। और लिखा है बपतिस्मा लेने के बाद वो खुशी खुशी अपने वतन को लौट गया। अब जरा ये बात सुनने वाली है। अब खुशी चेहरों पे आ गई। पहले चेहरे मुरझाए होते थे, गुनाह में थे ना, शैतान परेशान रखता था। अब खुशी आ जाती है, जब निजात मिलती है, चेहरे खिलखिलाते हैं। लोग कहते हैं ਤੁਹਾਡੇ चेहरे पे रौनक कितों आई है? एक साड़ी रौनक नहीं है, यीशु के खून की रौनक है, यीशु का फजल है। क्योंकि हमने निजात पाई है, चेहरों पे रौनक आ जाती है, खुशी आ जाती है। लिखा तो खुशी मनाता हुआ अपने घर चला गया। और हिस्ट्री ये कहती है जब वो इथियोपिया में गया तो वो मसीह का गवाह बन गया और लोगों को में बशारत का काम कर गया। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। चौथा शख्स, एक गैर यहूदी गोरा, इटली का एक गोरा था और उसका नाम था कर्नेलियस। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को उसके पास भेजा। पतरस उसके पास गया, उनके घर में गया। असल में बात इस तरह से कर्नेलियस ने दावत दी और पतरस ने कबूल की और वहां गया और पतरस ने वहां कलाम सुनाया, कहा तौबा करो, निजात पाओ, यीशु मसीह को कबूल करो, नई जिंदगी में चलने के लिए निजात पाना जरूरी है। पतरस कलाम सुना रहा था, वो गैर ज़बानी बोलने लगे, पाखरू नाज़िल हुआ, रूह
पतरस का बपतिस्मा उनके घर में मिला, और जब बपतिस्मा मिला बाद में पतरस ने कहा इनको पानी का गोते का बपतिस्मा भी दिया जाए। इसका मतलब है गोते का बपतिस्मा इतना जरूरी है, अगर किसी को पहले से गैर समाजों के साथ उसका बपतिस्मा मिल भी जाए उसके लिए भी पानी का बपतिस्मा जरूरी है। जो नहीं लेते वो सोच रहे हैं ये इतना जरूरी है, और उसने लिया बपतिस्मा, गैर यहूदी था, मसीह पर ईमान लाया, और तब्दीली के बाद गैर कौमों के लिए एक मिसाल बन गया। लोग कहते थे देखें वो गैर यहूदी वो मसीह पर ईमान ले आया, मिसाल बन गया, और वो यहूदियों में भी और गैर खास तौर से गैर यहूदियों में अपने गोरों में अंजील को फैलाने वाला शख्स बन गया। और नंबर 5 लुदिया, एक खातून, ये एक कारोबारी खातून थी, फिर भी शहर की रहने वाली थी, असल में रहने वाली खवातीरा की थी, फिर भी शहर में ये बिजनेस करती थी, कपड़ा बेचती थी और नेक खातून थी। और पौलुस और उसके साथी अपने दूसरे मिशनरी सफर के दौरान जब फिलिप्पी के इलाके में गए तो गेट पे ही उन्होंने देखा कि ये औरत भी है और भी औरतें हैं। पौलुस ने उनको कलाम सुनाया, बोले हालेलुया। जब कलाम सुनाया, निजात की तारीफ दी, इन्होंने यीशु को कबूल किया, तौबा की, अपने गुनाहों की माफी मांगी, और लिखा है कि लुदिया ने और उसके सारे घराने ने बपतिस्मा लिया। उधर तो सिर्फ औरतें ही थी, उसका घराना नहीं था। लगता है कि जब पौलुस ने मनादी की और कहा कि ईमान लाने के बाद बपतिस्मा लेना है, तो वो घर आ गई, अपनी फैमिली को बुला के लाई, और फैमिली आई और पौलुस ने उनको कलाम सुनाया और सारे घराने ने बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने के बाद मैं बात कर रहा हूं तब्दीली की। तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली ये आई कि वो पौलुस को अपने घर ले गई। अब वो बेज़बान बन गई है, खादमान का दावत देने वाली, खादमान का दावत देके खाने खिलाने वाली। और ये औरत जो है खुदा के खादमों की इस कदर वो निजात पाने के बाद तब्दीली आई कि वो मेजबान बन गई, उनको खाने खिलाती है और माली सपोर्टर बन गई। पौलुस को वो खिदमत के लिए अपने पैसे में से देती थी, और उसके बाद ये है ये मिनिस्ट्री की सपोर्टर बन गई और उसने अपना घर खोल दिया। हिस्ट्री ये कहती है उसने अपना घर खोल दिया, और फिलिप्पी में जो कलीसिया कायम हुई है वो हमारे घर में चर्च लगेगा। लुदिया के लिए तालियां हो जाएगी। मैं क्या बयान कर रहा हूं? मैं कौन से वाकया बयान कर रहा हूं? निजात के बाद, बपतिस्मे के बाद तब्दीली, ये तब्दीली है। और छठा वाकया, एक जेल का दारोगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। पौलुस और सीलास खुदा का कलाम सुनाने के जुर्म में जेल चले गए, कैद में थे, हाथ कड़ियां लगी हुई थी, पाँव में जो है बेड़ियां थी, काट में उनके पाँव ठोके हुए थे। आधी रात को पौलुस और सीलास जेल में गीत गा रहे थे, दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। वो दुआ कर रहे थे, गीत गा रहे थे, हम के गीत गा रहे थे जेल में, और कैदी सुन रहे थे। और क्या हुआ? अचानक जेल के दरवाजे खुल गए और हथकड़ियां लोगों की खुल गई, कैदी आजाद हो गए। और जो जेल का दरोगा है उसने पौलुस से कहा, जब उनकी बातें सुनी, कलाम सुना, तो उसने कहा क्या करूं, मैं भी निजात पाना चाहता हूं आपकी तरह। उसने कहा यीशु मसीह पर ईमान ला, तौबा कर। उसने की। फिर जो जेलर है उन्हें अपने घर ले गया, घर जाकर उसके खानदान ने भी कलाम सुना और सब ने तौबा की, निजात पाई और बपतिस्मा लिया। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। रातों रात बपतिस्मा लिया, पौलुस के जख्म धोए, मेहमान नवाजी की, बदला हुआ शख्स है। सवाल है नई जिंदगी में कैसे चले? क्या सवाल है अभी? नई जिंदगी में हाउ टू वॉक इन न्यू लाइफ। पहली बात ये है कैसे चले? बाइबल का मुताबिक हर रोज करना शुरू कर दें, हर रोज बाइबल पढ़ें। अगर पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ सकते तो ऑडियो बाइबल फोन में है, वहां से सुने। अगर वो भी नहीं है, आपके घर में टीवी है, वहां खुदा का कलाम सुने और बाइबल हर रोज पढ़ो, क्योंकि ये जिंदगी की किताब है, ये जिंदगियां बदलती है। यशों की किताब में लिखा हुआ है शरीयत की ये किताब मेरे मुंह से ना हटे,
तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो, ताकि तू एहतियात करके उस पर अमल कर सके। तब ही तुझे इबादतबंदी की राह सीखोगी, बाइबल पढ़ना शुरू कर दे। फिर दुआ में मशगूल हो जाए। पहले कभी कभी करते थे दुआ, अब हर रोज दुआ करें, बिना नागा दुआ करें, और दुआ भी बदल जाएगी आपकी। सुने, नजात से पहले आपकी दुआ होती थी, ऐ फलां मैं गुनहगार, अब आपने कहना फलां तेरा शुक्र हो मेरे गुनाह माफ हो गए। दुआ में मशगूल, लोगों के लिए दुआ करना शुरू हो। पहले आप अपने लिए करते थे, अब औरों के लिए दुआ करना शुरू करें। पहला तस्लीकियों 5वें बाब की 17 आयत, छोटी सी आयत है, बहुत छोटी आयत, सामने देखें। पहला तस्लीकियों 5वां बाब 17 आयत, क्या लिखा है? 3-4 लफ्ज है, बिला नागा दुआ करो। कितनी छोटी आयत है। क्या इंग्लिश में क्या है? प्रे विदाउट सीजिंग। उर्दू में क्या है? बिना नागा दुआ करो। तो ये दुआ करना शुरू कर दे। फिर तीसरी बात, रिफाकत रखें, ईमानदारों के साथ मेल जोल रखें। अब पुरानी दोस्तियां खत्म करके अगर उनसे दोस्ती करनी है तो अब फर्क दोस्ती है, उनको मसीह का पैगाम देने के लिए, लेकिन मसीह में तरक्की करने के लिए ईमानदारों के साथ बैठे, उनसे रफाकत रखें। अपने हाथ नीचे करें और यीशु मसीह के नाम की तारीफ करते हुए कहें, ऐ प्यारे खुदा, तेरा शुक्र हो, हमने सुना है कि नजात के बाद हमारी जिंदगी में तब्दीली आनी चाहिए। आज से मेरी जिंदगी में तब्दीलियां आना शुरू हो जाए, यीशु मसीह के नाम में। बैठिए।